कल बच्चों हमने 8 चैप्टर शुरू किया था, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड टैरिफ. There are different types of trade restriction, but we will see about tariff in this chapter. Tariff is a tax on any commodity whenever it crosses a national border. Tariff or trade policies are also called commercial policies. There may be import tariff and export tariff. There are three types of the tariff: ad valorem tariff, specific tariff, and compound tariff. Ad valorem tariff was on the price as a percentage of the price. Specific tariff was on the per physical unit, and compound tariff was combination of the first two. इसकी एग्जांपल आपने बुक से करनी है, उसको अगर ये क्वेश्चन हो तो उसमें ऐड भी करना है. नेक्स्ट इसमें हमने इस पूरे चैप्टर में जिस टैरिफ की हमने बात करनी है वो सिर्फ इंपोर्ट टैरिफ है. इसमें हम एक्सपोर्ट टैरिफ, कोटाज या और किसी भी किस्म की ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को नहीं पढ़ेंगे. ये सामने आपके जो टेबल आपको नजर आ रहा है, टैरिफ इन सम डेवलप्ड कंट्रीज. कल मैंने आपको बताया था कि टैरिफ, बच्चों आपको स्क्रीन नजर आ रही है, प्रॉब्लम तो नहीं? बच्चे बार बार आ रहे हैं कि फ्री ट्रेड इज ऑलवेज बेटर देन रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, बट टैरिफ इज एडवोकेटेड बाय द इंटरेस्ट ग्रुप्स. कोई भी ऐसे किसी कंट्री में ग्रुप जिनको टैरिफ लगाने से इकोनॉमिकली फायदा होता है, वो हमेशा उसकी. बच्चों आप लोग माइक बार बार ऑन कर रहे हैं. फेवर में होते हैं. टैरिफ के लिए इंटरेस्ट ग्रुप क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल इन डेवलप्ड कंट्रीज जो लेबर यूनियंस होती हैं, दे आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ टैरिफ ऑन द लेबर इंटेंसिव इंपोर्ट्स. यहाँ पे जो सामने आपकी टेबल दिया हुआ है, इट इज शोइंग द टैरिफ व्हिच इज इम्पोज्ड बाय many developed countries on the labor intensive imports from developing countries. For example, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग तो यहाँ पे हाईलाइट किया और ये सबसे प्रोमिनेंट भी है कि इम्पोर्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो से इसकी इंपोर्ट्स पे 12.8% टैक्स ऑस्ट्रेलिया ने, 3.4 नॉर्वे, न्यूजीलैंड. तो टैरिफ के कोटास थे स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के लिए 2005 में वो खत्म हुए. इससे ज्यादा ये कंट्रीज जो से ये चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी गुड्स चीपर थी और क्वालिटी में भी अच्छी थी. ये डिफरेंट कंट्रीज का टैरिफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम. टैरिफ को अंडरस्टैंड करने के दो तरीके हैं: पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. हम फिलहाल पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे. इसकी डायग्राम आपकी बुक में भी दी हुई है, ये डिटेल्स हैं उसकी, वो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ. In this diagram, we are taking a commodity X on x-axis and price of X on the y-axis. Price is given in the dollar, and this for supply and demand curve is shown by the supply and demand curve of nation 2. Nation 2 is that nation जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ते चले आ रहे हैं, which exports the commodity Y and imports the commodity X. Before trade, this nation is producing 30 units of X and it is selling at the price $3 in domestic market, and E is the equilibrium in the domestic market. Now this nation starts trade with another nation, and international level pay the other nation is selling the commodity X with at the price of $1. At this price, this horizontal straight line is a foreign supply curve, means this nation's supply curve is perfectly elastic, and nation 2, yeah, this nation can purchase as many quantity of X at this given point of X. Now when trade opens, this nation buy X from the other nation, and due to decrease in price from $3 to $1, this nation is now consuming 70 units of X. And these 70 units of X are imported. 10 units are now produced domestically because domestic producer can produce only 10 units at this lower price. 70 minus 10, 60 units are imported from the other units. Now we say that this nation, the producer want some protection against these cheaper imported from the other nation. So this nation put some restrictions or the tariff 100% ad valorem tariff and price increase from the
$1 to $2. An increase in price caused a decrease in imports because now this nation is consuming only 50 units of X and this nation is producing 20 units domestically and now exports are only 30 units. What are the effects of this tariff? मतलब आपने टैरिफ लगाया है, प्राइस जो सी आपकी $1 से $2 यानी कि डबल हो गई है, आपकी कंजम्पशन पहले से कम हो गई है, आपकी एक्सपोर्ट्स पहले से कम हो गई हैं इंपोर्ट्स और आपकी प्रोडक्शन कुछ ना कुछ इंक्रीज हो गई है। तो इस टैरिफ के इफेक्ट जो हैं वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए पढ़ने के लिए पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस और व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। पीछे आपने माइक्रो के सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। क्लास में कोई एक बच्चा जो ये बताना चाहे कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या ये सिर्फ ये कि व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस। कोई भी नहीं। एनीवे फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप एक दफा निकाल के अपनी माइक्रो की बुक इस कॉन्सेप्ट को जरा रिवाइज कर लीजिएगा। कंज्यूमर सरप्लस अगर आप ग्राफिकली उसे प्रेजेंट करना चाहें तो इज द एरिया above the ruling market price and below the बच्चे अहमद अब मैं थोड़ी देर बाद आपकी बात सुनूंगी, मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर लूँ, प्लीज लो योर हैंड। एरिया below the demand curve and above the market price is called the consumer surplus। इसे कंज्यूमर सरप्लस क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर क्वांटिटी 70 यूनिट्स अवेलेबल हो तो कंज्यूमर जो प्राइस पे करेगा वो सिर्फ $1 है, लेकिन अगर सिर्फ इस चीज के 10 यूनिट्स अवेलेबल हो तो यही कंज्यूमर आपको 4 रुपीज भी देने पे विलिंग होगा। लेकिन चूंकि क्वांटिटी अब ज्यादा मकदार में अवेलेबल है तो कंज्यूमर को इस चीज की जरूरत नहीं है कोई इतनी ज्यादा अमाउंट में पे करे, इसलिए वो सिर्फ 1 यूनिट पे कर रहा है और वो इस 70 यूनिट्स के लिए 1 यूनिट पे कर रहा है। लेकिन अगर उसके पास उसको सिर्फ 10 यूनिट मिल रहे होते जो कि यहाँ पे अवेलेबल है और बाकी यूनिट्स अवेलेबल ना होते तो यही कंज्यूमर जो है वो उनके लिए $5 भी देने पे तैयार था। तो अब चूंकि वो इन यूनिट्स के लिए सिर्फ $1 दे रहा है 70 यूनिट्स के लिए, तो इसका मतलब ये है कि शुरू के जो यूनिट्स थे जिनके लिए वो $4 भी देना चाह रहा था उनके लिए भी अब वो सिर्फ $1 दे रहा है। तो ये एरिया जो $1 से ऊपर है और $4 से नीचे है, ये सब का सब जो है इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो प्राइस इंक्रीज होने से या इम्पोर्ट्स पे टैक्स लगने से सबसे पहला जो इफेक्ट है वो क्या होगा? वो कंज्यूमर सरप्लस पे होगा। कंज्यूमर सरप्लस जो है पहले से कम हो जाएगा, लेकिन प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर सरप्लस जो है पहले से ज्यादा हो जाएगा। प्रोड्यूसर सरप्लस किस चीज को कहते हैं? एरिया अबव सप्लाई का एंड बिलो द मार्केट प्राइस। ये एरिया जो यहाँ पे डार्क कलर में शो हुआ हुआ ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ क्या फर्क पड़ा है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को। $1 price थी with free trade, $3 price थी without trade, now with the tax price is equal to $2। Because of this increase in the price, consumer surplus has decreased and decrease is equal to कितना कम हुआ है? A, B, H, G, ये एरिया सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस से निकल गया। कंज्यूमर सरप्लस था कितना इससे पहले? कंज्यूमर सरप्लस था R, B एंड A और इस एरिया में सब ये एरिया आपने माइनस कर देना। प्राइस इंक्रीज होने से कंज्यूमर सरप्लस में जो कमी आई है वो गया कहाँ है?
उसमें से ये जो एरिया है अबव सप्लाई कर्व एंड बिलो न्यू प्राइस, ये चला गया प्रोड्यूसर के पास, ये ऐड हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस में. इट इज अबाउट $15. नाउ द एरिया M&H ये कहाँ है? ये गवर्नमेंट रेवेन्यू में चेंज हो गया. How it is changed in the government revenue? Because now they are importing only 30 units of X, और हर 30 यूनिट ऑफ X के साथ